this is a really interesting part wherein we'll be covering the implementation aspect as to, we got through the law, right? When Mr. Ritesh talked about the requirements in the regulation. We were talking about consent, we were talking about notice requirements, right? So this session is more about implementing the notice requirement and the rights management, which are the rights that are given to these individuals, right? I'll be taking you in a little depth when we'll be covering this session. So it's going to be a line by line thing and how the implementation approach works. So on to the implementation of privacy notice and, okay. Now coming to this particular thing of notice requirement, it's mentioned in chapter 2 of the law, right? So if you go line by line, this is just a more of a textual slide. The rest will be coming up, will be more on the implementation side. So any request that is made by the data principal should be accompanied or preceded by a notice given by the data fiduciary. So now we all are clear. Data principal is who? The one who owns the data, right? Till now, the organizations were having a conception that if I as an organization, maybe a government organization that you would be representing, if we are collecting the data, we are the owners of that data. But the law is making it very clear, you are not the owner of that data. The data belongs to the person to whom that data relates to. So he or she is the one who is the owner of that particular personal data. And here, you as an organization, maybe a government organization, private organization, is a data fiduciary, and the data whom it belongs to, who's the owner of this personal data, is a data principal. Are you all with me? This is what we read through from morning, right? Now, what is this particular data that we are collecting, right? The law is saying that if you are collecting the personal data of data principal, ensure the personal data for the purpose that you're collecting or probably processed is informed to the data principal. उसको सूचना जानी चाहिए. जब भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, किसी का प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को उसकी सूचना जानी चाहिए. नोटिस यानी क्या है? एक सूचना है कि आपका डेटा प्रोसेस हो रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के वती से. आप एक यहाँ पे लेट्स कीप द सेशन बड़ा इंटरैक्टिव रखते हैं. बहुत सुबह से मोनोटोनस हो गया मुझे ऐसा लग रहा है. Can somebody tell me which government organizations that you are representing to? From every table, if you all can just randomly tell me कि okay, I am from this particular organization or this government entity that I am representing, so that we can have, yes sir, please. Agriculture. Science and technology. Higher education department. Yes sir. Higher education. Higher education department, yes. Planning for? Planning. The city planning, you okay? UP planning department, okay. Student university supply? Food, okay. Yes sir, behind? Technical education. Okay. Food and civil supplies. Food and civil supplies? Sericulture. Sericulture, okay. So we have vivid representations from different organizations. We have from education, we have from planning department, right? So all of y'all are collecting personal data in some way or the form. This is, sir is from the education, right? Planning department. Now planning department, the citizens of UP would be the data principals for the planning department, right? Agriculture, the farmers of UP who would be registering with you for some schemes would be the data principals, right? Everyone with me there? Now, the law is saying that any personal data, may it be from the farmers, the students, the citizens of Uttar Pradesh or citizens of India, residents of India, if we are collecting, अगर हम इनका डेटा ले रहे हैं तो इनको सूचित करे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका डेटा कैसे यूज होगा, किस लिए यूज होगा. अगर आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फार्मर का डेटा ले रहे हैं तो वो डेटा सिर्फ वो जिस पर्पसेस के लिए वो कोई स्कीम के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो उस स्कीम के लिए ही यूज होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट माइट गिव लोन टू द फार्मर्स फॉर फार्मिंग. इट शुड बी यूज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस. या कोई स्कीम देना चाह रहे हैं कि अच्छा सूखा पड़ गया तो उसके लिए ये आपका कंपनसेशन है वो देने के लिए, बट वो डेटा आप और दूसरी चीजों के लिए नहीं यूज कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते. अच्छा, मेरा प्लानिंग डिपार्टमेंट मांग रहा है डेटा कि कितने फार्मर्स हैं, मैं दे देता हूँ प्लानिंग डिपार्टमेंट को. आप वो डेटा इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते
क्योंकि इस एग्जाम्पल प्लानिंग डिपार्टमेंट की जो मैम है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको शेयर करने का आपको राइट नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि आपने लिया ही डेटा है कि फार्मर को कुछ स्कीम्स दी जाए या कुछ स्कीम्स के तहत उनको सुविधाएं दी जाए। तो जब भी डेटा शेयर हो रहा है या कलेक्ट हो रहा है, तो दीज डेटा प्रिंसिपल should be made aware that data is being collected. Now, the personal data which is for the purpose of the where the data principal has given the consent for processing of our personal data before the commencement of the act. अगर पहले आपके पास डेटा है, आप बोलेंगे अच्छा मेरे पास तो पहले से डेटा है, मैं अभी कंसेंट क्यों लूंगा? नहीं, अगर आपके पास पहले से डेटा मौजूद है तो उसके लिए भी आपको एक रिफ्रेश्ड कॉन्सेंट या रिफ्रेश नोटिस भेजनी पड़ेगी, बताने के लिए कि आपका डेटा कैसे हम प्रोसेस कर रहे हैं। हम इससे नहीं छूट सकते कि अच्छा हमारे पास तो 50 साल पुराना डेटा है या हमने तो लास्ट ईयर ले लिया डेटा, तो हम उसके लिए उनको नोटिस नहीं देंगे, सूचित नहीं करेंगे। नहीं, हमें उनको भी सूचित करना पड़ेगा, जब हमको उनको फ्रेश नोटिस देनी पड़ेगी। जब ये लॉ एक्ट जो आपको डेट आ जाएगी, चाहे 2 साल के बाद आपको ये एक्ट ये हो रहा है, यू हैव टू सेंड देम अ नोटिस। नाउ the data fiduciary may continue to process the personal data until the data principal withdraws her consent, her or his consent. हम तभी तक यूज कर सकते हैं जब तक वो अपना डेटा विड्रॉ नहीं करते। ओके, कमिंग टू द सेकेंड पार्ट कि एक सूचना कैसी होनी चाहिए, है ना? जो नोटिस है, जो नोटिस जा रही है, सूचना जा रही है, वो कैसी होनी चाहिए? तो पहली बात तो सूचना कब दी जानी चाहिए? पहली बात व्हेन, जब आप पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जब कोई फार्मर आ रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रजिस्टर करने के लिए, कोई स्कीम के लिए नया फार्मर आ रहा है, एक आप तब दे सकते हैं द मोमेंट ही इज रजिस्टरिंग, और जब वो कंसेंट देने की कोशिश कर रहा है या कोई स्कीम में एक्चुअली रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा है तब दे सकते हैं। तो एट द टाइम या बिफोर ऑल्सो, कि आपका वो प्रोस्पेक्टिव हो सकता है कस्टमर या प्रोस्पेक्टिव फार्मर हो सकता है जो स्कीम के लिए रजिस्टर करेगा, तो पहले या एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। These are the 2 times when this notice should be given. Now, provision to the data principal for viewing the notice. लेकिन ये notice उसको सिर्फ इंग्लिश में नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि एक फार्मर हो सकता है, एक विद्यार्थी हो सकता है, ये कोई उत्तर प्रदेश का कोई सिटीजन हो सकता है, नागरिक हो सकता है जिसको इंग्लिश नहीं आती हो, राइट? या हिंदी नहीं आती हो, तो उसको लॉ ये बता रहा है कि हमें वो नोटिस 22 लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। अब ये 22 लैंग्वेजेस कौन सी है? तो वी ऑल नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एवरीवन? Yes. Now, Constitution of India has something called as 8th schedule, and in this 8th schedule there are 22 Indian languages जो बताई गई है, ठीक है? अब ये 22 इंडियन लैंग्वेजेस जो उसमें बताई गई है, जिसमें कोदरी, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, हिंदी, मराठी, असमीज, वो 22 लैंग्वेजेस में उसको एक्सेसिबल होनी चाहिए वो नोटिस, और इंग्लिश इसके साथ इंग्लिश में। सो टोटल कितनी हो गई लैंग्वेजेस? 23 लैंग्वेजेस हो गई, राइट? सो टोटल 22 languages that are mentioned in the Indian Constitution plus English, so makes it 23, right? Now, the description, आपका क्या पर्सनल डेटा उसमें चाहिए, क्यों, आपका क्या पर्पस है, राइट? अगर आप एजुकेशन प्लानिंग डिपार्टमेंट से है, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग? आपका पर्पस कम्युनिकेट करना उस सूचना पत्र में उस व्यक्ति को जो डेटा प्रिंसिपल है, जो उस डेटा का ओनर है, जिसका वो डेटा है, उसको बताना हम क्या पर्पस के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द वे डेटा प्रिंसिपल कैन विड्रॉ द कॉन्सेंट, वो कैसी अपनी जो कॉन्सेंट देने वाला है वो विड्रॉ कैसे कर सकता है, ये इतना ही आसान होना चाहिए जितना कंसेंट देना आसान होता है ना? जैसे हम कोई भी ऐप पे जाते हैं, वी क्लिक ऑन अ चेकबॉक्स, हम अंदर चले जाते हैं ऐप के, कितना आसान होता है। तो अगर किसी को उसमें से बाहर निकलना है, उस एप्लीकेशन और उस डेटा के चक्कर में उसे बाहर निकलना है, वो उतना ही आसान होना चाहिए, है ना? फिर उसको ये भी पता चलना चाहिए कि अगर उसको कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ ग्रीवेंस हो, तो वो उसको कैसे आप तक पहुंच सके। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बताई जाती है। काफी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, आप सबके पास है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दे रीच आउट टू यू। बट द लॉ सेज, डीपीडीपी एक्ट सेज कि एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, एक ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए जो उसके पर्सनल डेटा के संबंधित जो भी ग्रीवेंस है वो वहां पे रेज कर पाए, है ना? अभी हमारे पास ग्रीवेंस क्या आती है, सर मेरे को मेरे पैसे नहीं मिले, या मुझे जो ये कंपनसेशन मिलना था वो नहीं मिला, इतने दिन हो गए, है ना? बट अगर किसी को ये ग्रीवेंस है कि सर ये जो नाम लिखा है मेरा, जो मेरा सपोज संयोगिता आर होना चाहिए, वो मेरा संयोगिता
गायकवाड़ दिख रहा है, वो मुझे चेंज करना है, ये मेरा पहले का नाम था, मुझे ये बदलना है, ये गलत दिख रहा है। तो इस संबंधित जो भी पर्सनल डेटा संबंधित ग्रीवेंस है या इश्यूज है, उसके लिए अलग से एक ऑफिसर नियम करना पड़ेगा, जिसको हम ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर भी बोलेंगे या एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बोलेंगे, है ना। ये एक ईमेल आईडी हो सकती है जहां पे आप एक क्रिएट कर सकते हो आपके जो भी कस्टमर होंगे उनके लिए, ठीक है। और वो ये भी बताना चाहिए सूचना पत्र को कि आप कंप्लेंट बोर्ड को कैसे कर सकते हो, जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड होगा उसको आप कंप्लेंट कैसे कर सकते हो। नाउ एक कुछ की एलिमेंट्स है, ये जो आपको दिख रहा है इसमें कुछ की एलिमेंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम एक सूचना पत्र बनाते हैं तब। अब वो सूचना पत्र में क्या क्या होना चाहिए, एक वो बड़ी क्लियर लैंग्वेज में होना चाहिए। क्लियर लैंग्वेज हम बोलते हैं बड़ी सरल भाषा होनी चाहिए जो सबको समझ में आए, जो हर यूजर को, हर धारक को समझ में आए, जिसे पढ़े सिंपल पढ़े तो समझ में, ऐसे ना हो कि जो उसे डिक्शनरी लेके बैठना पड़े या वकील के पास जाके समझना पड़े ये कैसे क्या लिखा है ना। बड़ा सिंपल, क्लियर, कॉन्साइज, वेरी सिंपल, नॉट एम्बिगुअस, है ना, सिंपल होना चाहिए। दूसरा, एक इंडिपेंडेंट प्रेजेंटेशन होना चाहिए, है ना। इट शुड नॉट बी बंडल्ड विद अदर इन्फॉर्मेशन कि अच्छा ये सूचना पत्र है, इसके साथ अच्छा आप ये भी ले लो, ये भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ये भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप ले सकते हो। सिंपल नोटिस विच इज वेरी इंडिपेंडेंट, राइट। उसके क्या राइट्स है, अब आई विल टच अपॉन द राइट्स, मैं राइट्स आगे टच करूंगी, बट अभी जो नोटिस है उसमें ये भी बताना चाहिए अच्छा यू हैव राइट टू एक्सेस, यू हैव राइट टू करेक्शन, है ना। जो राइट्स दिए गए हुए लॉ में वो आपके पास है, ये नोटिस में दिखना चाहिए। द पर्पस, जो मैंने आपको बताया जिस पर्पस के लिए आप कर रहे हो वो पर्पस स्पेसिफिकेशन बड़ा क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए नोटिस में, एंड डिटेल की क्या क्या पर्सनल डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उनका और क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। पर्पस इज क्यों और क्या कर रहे हैं इज टू बी डिसाइडेड। एवरीवन विद मी ऑन दिस कि सूचना पत्र कैसा होना चाहिए? यस, ओके। जनरली क्या क्या होते हैं सूचना, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नोटिसेस दैट इज यूजुअली गिवन to individuals, to your customers, to your data principals? One is a general privacy notice, right? What is a general privacy notice? Which provides comprehensive information about your organization's overall data processing practices, right? Which is usually, which is referred internally by organization is called as a privacy policy, right? Which includes what are the type of data that's collected, legal basis of processing, what data is being shared by with the third parties. What are the data principal rights? We saw in the previous slide, right, ki what should notice include, but these are something in detail. I missed change again, okay. Yeah, and contact details of a data protection officer also if you are a significant data fiduciary and that thing. Okay, now what is a just in time privacy policy? Privacy notice कि अच्छा कुछ relevant privacy information देनी है, like आप एक ऐप में जा रहे हैं, right, you logging in and immediately you see a privacy notice. What is that? Just in time privacy notice. Now what this see, all privacy notices will have the key content which we saw on the previous slide. It's only the way it is being presented. Now what is the data being collected, why it is needed, linked to your full privacy policy and things like that. Now what is a layered privacy notice? Wherein you have a top layer which is a short summary as to what you're going to, because आपका अगर privacy notice is very long, very huge in size, then you need to ensure it's split into a top layer, short layer and a third layer which will have your short summary, then the key details and the full policy text. Yeah. Now even to our employees, right, it's not just your customers, your outside people whom you need to give a notice to. It's even your internal people that you have to give a notice to, which can be your employees, right? You might say employees, are they data principal? Yes, for an organization, employees are also data principal, right? Please make sure that we are very much clear कि employees भी हमारे data principal है, क्योंकि उनका data सिर्फ हम employment purposes के लिए नहीं पर दूसरे वितरिक purposes के लिए भी use कर रहे हैं, है ना। तो उनको भी ये पता होना जरूरी है कि उनका डेटा क्या कलेक्ट हो रहा है, क्यों कलेक्ट हो रहा है, वो कितने दिनों तक रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में और उनके राइट्स क्या है। एम्प्लॉइज को भी वही राइट्स है जो एक डेटा प्रिंसिपल को राइट्स होते हैं, बट देयर आर सम सेक्टोरल रेगुलेशन, जैसे एम्प्लॉयमेंट लॉ होता है, राइट, वी ऑल नो अबाउट एम्प्लॉयमेंट लॉ। अगर एम्प्लॉयमेंट लॉ बोल रहा है कि हमें कुछ डेटा सिर्फ कुछ समय के लिए रखना है, तो वो एम्प्लॉयमेंट लॉ के साथ रीड करना जरूरी है और उनको समझाना जरूरी है कि आपका रिटेंशन पीरियड क्या होगा या आपके राइट्स क्या होंगे।
सबको ये क्लियर है till the employee privacy notice? Yes? Okay. What is a third party notice? So third party notices, third party कौन होती है? जिनको आप हायर करते हो, थर्ड parties are those from whom you take services. Now for example, आपके इसमें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, कोई एम्प्लॉय को हायर किया जा रहा है तो एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक होता है ऑर्गेनाइजेशंस में जी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो एजेंसी करती है बीजीवी, हम कंपनी तो करते नहीं है या हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो करेंगे नहीं, हम किसी थर्ड पार्टी को बोलेंगे अच्छा तुम ये कॉन्ट्रैक्ट लो, हमारे ये नया एम्प्लॉय आने वाला है, इसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करो। तो वो जो थर्ड पार्टी है वो आपकी क्या हो गई, ही इज अ डेटा प्रोसेसर। क्या हो गया, वो डेटा प्रोसेसर हो गया। तो थर्ड पार्टी वेंडर्स कैन बी योर आर योर डेटा प्रोसेसर्स यूजुअली, और ये सिर्फ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वेंडर तक सीमित नहीं है, ये और भी हो सकते हैं। जैसे आपको कोई रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है ना, as you are into agriculture, you might require raw material like seeds and all to be given to the farmer under some schemes. So you might be procuring from some third party vendor. आप खुद तो बाजार से जाके स्टॉक अप नहीं करेंगे, आप कोई स्टॉकिस्ट को बोलेंगे हमें सप्लाई दीजिए। तो that third party is also your data processor, because you might be also engaging him to okay, ये लिस्ट ऑफ फार्मर्स है जिनको ये सीड्स देने हैं, तो वो ऑफिस से उनको इशू किए जाए वो सीड्स, है ना। तो थर्ड पार्टी जो एंगेज्ड है आपके साथ सीड्स देने के लिए, वो भी डेटा कलेक्ट कर रही है इन फार्मर्स का या प्रोसेस कर रही है डेटा, तो ये क्या हो गई, दीज आर ऑल्सो डेटा प्रोसेसर्स। और जैसे नीति मैम ने भी कवर किया था राइट, डेटा प्रोसेसर्स और इनके बारे में, और फर्स्ट सेशन में भी हुआ। तो डेटा प्रोसेसर्स को आप जब एम्पैनल कर रहे हैं तो इंश्योर करना है कि हम उनकी प्रॉपर जांच करके उनको करें, यानी उनके लिए भी एक ड्यू डिलिजेंस मैकेनिज्म होना चाहिए कि वेदर यू आर आल्सो कंप्लाइंग विद डीपीडीपी एक्ट और नॉट, आपके पास सिक्योरिटी मेजर्स है कि नहीं, है ना। व्हाई, द रीजन इज दैट the whole liability is on you as data fiduciary. I'm just touching upon it just because third party vendors यहाँ पे देखे, we'll touch more into the organizational measures, but yeah, this is something that, और इनको भी हमें नोटिस देना बहुत जरूरी है ना, कि आपका भी डेटा हम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। Now these can be your contractors, suppliers, partners and all. Children privacy notice, anybody in the hall processing children's data from birth, death records or things like that, anybody from that department? Okay. So children's data is also something that is there in the regulation, which says that children's data, if it's being processed, there needs to be a verifiable parental consent taken from the parent of that particular child. अगर हम child का data process कर रहे हैं तो उसके parent का भी consent होना जरूरी है। तो probably Bharat sir will cover in his session, but we need to ensure this notice is even given to that particular child of that parent, that his child's data is being processed and he's probably consenting to. Okay. Ma'am was touching about, yeah, please. How can we ensure that the consent is also Very forward, much. right? So how will we ensure that the parent also has that consent? Absolutely correct. Very bang on question. Thank you, ma'am, for that. So I'll tell you, that is where we call it as verifiable parental consent. The parent's consent should be verifiable कि ये बच्चे के dad और mom उसको consent दे रहे कि you go and log into the app. Now suppose he's trying to log in from a mobile app. It would tell you, अच्छा, go to your parent and take his go ahead and this parent should fill in these details. Now children are very smart, they'll go and fill it themselves. Now it is duty of those app owners or probably app makers to ensure कि जो consent parent दे रहा है वो authenticate हो, या we call this as verifiable parental consent का mechanism आना जरूरी है। इसमें एक्सटेंसिव डेटा अब आप नहीं कलेक्ट करने लगे, लाइक जहाँ हम डेटा मिनिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, Right. वहाँ पे अगर मुझे वेरीफाई करना है तो फिर मुझे पेरेंट की फोटो खींचनी पड़ेगी या उनका आधार लेना Right, I agree. सो उस पर्टिकुलर केस नहीं, पर अगर आप फिर वेरीफाई कैसे करोगे, आपको एक ये भी चाहिए कि वेरीफाइबल कंसेंट हो, क्योंकि द लॉ इज मेकिंग इट वेरी क्लियर, अगर चिल्ड्रन का डेटा जहाँ पे भी आ रहा है इट इज अ सेंसिटिव पर्सनल डेटा, क्योंकि चाइल्ड डेटा इज यूजुअली कंसिडर्ड वेरी सेंसिटिव in terms of the child is not aware even of the consequences of the data that he is sharing, right? So that's why they have created a concept of a verifiable parental consent, and for that organizations have to decide what data they'll be collecting to ensure the verification is happening and there is authenticity of the verification that has happened. So that will come up, but yeah, really appreciate that question. Yeah. Okay, everyone with me till here? Okay, these are you've seen. But when the organizations are trying to implement notices, there are few dark patterns that are usually seen. Now, what are these dark patterns?
a few pre-checked in boxes कि अच्छा पहले से वहां पे ऑप्ट इन किया गया है आपके नाम पे, चेक ऑलरेडी वो बॉक्स को कर दिया गया है. अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप चेकआउट कीजिए. इट शुड नॉट बी दैट वे. इट शुड बी कि आप जाके उस बॉक्स को खुद टिक करें, प्री टिक्ड ना हो वो बॉक्स, है ना. जब भी आप ये नोट, आपको ये सब जरूरी लगने वाला है जब आप ये कुछ डिजाइन करेंगे, आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको डिजाइनर्स आके बोलेंगे ये ज्यादा इजी है, जो वेब डिजाइनर्स या कुछ नहीं, वी प्री टिक द बॉक्स एंड गिव इट टू देम, ताकि उनको टिक ना करना पड़े. बट नो, इट इज नॉट कंप्लायंट. इट शुड नॉट बी अ प्री टिक्ड बॉक्स. लैंग्वेज, आपका लीगल बोलेगा ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे डाल देते हैं तो वी विल बी ऑल क्लियर. नो, इट शुड बी वेरी क्लियर. हम क्या करना चाह रहे हैं, क्यों डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, क्या पर्पज है, वो बिल्कुल अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए, है ना. एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए उस लैंग्वेज में. कोई हिडन प्रिवेसी सेटिंग्स नहीं होनी चाहिए, है ना. ऑप्ट आउट मैकेनिज्म होना चाहिए, है ना. और फोर्स कंसेंट नहीं होनी चाहिए. कोई भी कंसेंट फोर्स्ड नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी फ्रीली गिवन, है ना. तो दीज आर अ फ्यू dark patterns that are seen in a privacy notice which are there. So these we discussed this, but these are the some things to be avoided when you are drafting privacy notices or probably implementing privacy notices in your systems. Ensure this particular hidden privacy settings is something that should be completely avoided, because you try to get from the user data which is not intended for the purpose, right? So these kind of activities should not be done. So these are a few things that we need to ensure we are okay. Now when we are implementing, right, these are a few industry challenges that were there and probably some answers to it. How do we do this information notices or privacy notices, right? So first of all, we need to ensure we are creating an enterprise level framework for the notices that are aligned to businesses, products and services. Create notice master, mapping each notice to a specific hierarchy of the framework, or probably setting it up, for example, consumers, employees. ये notice किसके लिए बनाई गई है ना, उसका mapping होना बहुत जरूरी है. और जब वो दे रहे हैं notice का response, if somebody is, you're sending the notices, the same should be mapped, right? And there should be relevant notices given to the data principal in various data collection scenarios across the journey that they undertake. ऐसा नहीं है कि हम जब रजिस्टर कर रहे हैं तब एक नोटिस दे रहे हैं and we are done. कल अगर आपका पर्पस बदल रहे हैं या आप कुछ ऐड कर रहे हैं अपने पर्पस को, है ना, तो उनको वापस एक सूचना पत्र जाना चाहिए. कहते हैं कि अच्छा हमने पर्पस हमारा चेंज में ये ऐड ऑन किया है, ये हमारा ये नया प्रिवेसी नोटिस है, सूचना पत्र है. ऐसे नहीं जो हमने पहले लेके रखा हुआ है उसी के ऊपर हम अगले 10 साल 15 साल बिलीव करते रहे और रिकॉर्ड बना के नहीं मैंने दिया था सूचना पत्र. नहीं, वो रिफ्रेश होना चाहिए द मोमेंट यू चेंज द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग, है ना. वी नीड टू एंश्योर द फ्रेश रिफ्रेश नोटिस इज गोइंग टू द डेटा प्रिंसिपल. वी नीड टू क्रिएट सिस्टम टू कैप्चर नोटिस एंड मेंटेन ऑडिट ट्रेल ऑफ द चेंजेस टू द सेम. या व्हाट डज इट मीन? दैट वी नीड टू एंश्योर कि हमारा सिस्टम भी उतना कंप्लायंट हो और उसका ऑडिट ट्रेल बना रहे. जैसे नीति मैम ने बताया था अकाउंटेबिलिटी एक शब्द यूज किया था. व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? कल जाके हमको ये बताना पड़ेगा जब डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड पूछेगा कि अच्छा इन फार्मर्स का या इन स्टूडेंट्स का जब इन्होंने एक्सेप्ट की थी आपकी प्रिवेसी नोटिस या आपने इनको भेजी थी उसका हमें लॉग दिखाइए, है ना. उसका भी ऑडिट होगा आगे जाके, तो तब हम दिखाने के लिए सक्षम होने चाहिए एज अ डिपार्टमेंट दैट दिस इज द प्रिवेसी नोटिस सेंड टू हिम ऑन दिस डेट. फिर उसके बाद ये चेंज हुआ, उसके बाद ये भेजी थी, और उसका ऑडिट ट्रेल दिखना जरूरी है. एवरीवन विथ मी देयर? Yeah, this is very important critical part of it. Okay, everyone till know this? Everyone good? Okay. Now there is something called as data principal rights management. यहाँ पे कितने लोगों को पता है कि जहाँ राइट दिया जाता है वहाँ क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज किसकी होती है? ऑर्गेनाइजेशन की. यहाँ पे अगर डेटा प्रिंसिपल को राइट दिया जा रहा है तो ड्यूटी किसकी है? आपकी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना. सो यू एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स योर डेटा प्रिंसिपल. सो देयर आर फ्यू राइट्स दैट आर गिवन. फर्स्ट इज राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल डेटा. नाउ व्हाट इज दिस राइट टू एक्सेस? डेटा प्रिंसिपल को बताया गया है कि आपको एक राइट है लॉ में which says you have a right to obtain from data fiduciary
in a probably the right is okay. Summary of personal data which is processed. Now what is summary of personal data that's being processed? आपका अब तक क्या क्या डेटा प्रोसेस किया है ये आप डेटा फिड्यूशरी से पूछ सकते हैं, राइट? आइडेंटिटीज ऑफ अदर डेटा फिड्यूशरीज, डेटा प्रोसेसर्स टू whom the personal data has been shared with. हम एज ए डेटा प्रिंसिपल, फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग डिवीजन को यूपी का सिटीजन, आई एम अ सिटीजन ऑफ यूपी, आई कैन गो एंड आस्क where are you sharing my data with, whom are you giving my data to and why are you doing that. ये मुझे राइट दिया गया है इस लॉ के तहत. जैसे आरटीआई के तहत हमको कुछ राइट्स है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सिमिलरली यहाँ पे राइट दिया गया है कि हम जाके राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और गवर्नमेंट बॉडीज को भी पूछ सकते हैं कि मेरा डेटा आप कहाँ यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं. सो दैट इज योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल डेटा. Now, okay. So this is clear. We'll cover it in the next part also. The second right that has been given is right to correction and erasure of personal data. We have a right to ask these authorities. Public data principal is a right to ask, please correct my information. Please erase my information. Do we see in Aadhaar we have a right to go and update our address? दिया है आधार ने right? हम आधार में जाके हमारा एड्रेस चेंज कर सकते हैं. कल मेरा नाम बदल गया, मैं नाम जाके चेंज कर सकती हूँ, फोन नंबर चेंज कर सकती हूँ, अपडेट कर सकती हूँ ये चीजें. तो ये ऑलरेडी आधार में इम्प्लीमेंटेड है. तो ऐसी चीजें आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, जहां एक आपका जो पहले ही कस्टमर है या प्रिंसिपल है वो आके आपको वो चेंजेस दे और आपकी सिस्टम एनेबल करे उसको वो चीजें अपडेट करने के लिए. ये नहीं कि मेरा नाम पहले संयोगिता गायकवाड़ था तो वो अजन्म मेरा नाम संयोगिता गायकवाड़ रहेगा आपके रिकॉर्ड्स में. नहीं, अगर मैं शादी कर रही हूँ, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट लगा रही हूँ, मुझे मेरा अपडेट करने का अधिकार मिलना चाहिए आपके सिस्टम में, है ना. इवन मेरा एड्रेस अपडेट हो रहा है, मैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, मुझे अपडेट करने की वहाँ पे एक एनेबलमेंट रहनी चाहिए आपके टेक्नोलॉजी में. जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, उसमें रहनी चाहिए. ये आपको कौन, ये लॉ बोल रहा है कि आपको ये राइट्स देने पड़ेंगे. अगर आज नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे. सो हमेशा मैं बोलना चाहती हूँ कि डीपीडीपी एक्ट खाली आपके लीगल वाला टीम चेंजेस कर देगा और आप कंप्लायंट हो जाओगे, ऐसे नहीं होगा. इसमें बहुत सारी आईटी री इंजीनियरिंग लगेगी जब जाके आप कंप्लायंट हो पाओगे. ऐसा नहीं है ओवरनाइट मैंने अपनी पॉलिसी बदल दी, नोटिस बदल दी और मैं कंप्लायंट हो गया या हो गई. नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन. आपको आईटी री इंजीनियरिंग, डिजिटाइजेशन करना पड़ेगा जिससे आप फुल्ली कंप्लायंट हो पाओगे. जो आपका पॉलिसी प्रोसीजर बना है वो बोल रहा है, वही आपका सिस्टम भी बोल रहा है. सिस्टम अलग बोल नहीं सकता, आप पेपर पे अलग नहीं दिख सकते, है ना. सो दैट्स हाउ यू बिकम फुल्ली कंप्लायंट. ओके, राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल. यस, हाँ, या इरेजर आई मिस्ड आउट. या सिर्फ करंट यूसेज के लिए रुकेगा, अदरवाइज पुराना ऑडिट ट्रेल पड़ा रहेगा. सो बेसिकली सी, इरेजर जैसे कहा गया है, इट शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एज इट सेड कि मेरे को मेरा पूरा डेटा इरेज करना है. सपोज आपको आपके सेक्टोरियल रेगुलेशन बोल रहे हैं कि आपको ये डेटा, जैसे एग्जांपल आप बैंक हो या आप कोई गवर्नमेंट पड़ेगा, अगर मैं आ भी गई आपको बोलने डेटा इरेज कर दीजिए, आप कंप्लीटली तो वो इरेज नहीं करेंगे. आप उनको एक राइटअप देंगे या एक उसको रिस्पॉन्स टू द इंक्वायरी बोलते हैं कि वी कैन नॉट कंप्लीटली डिलीट योर इन्फॉर्मेशन बिकॉज ये सेक्टोरियल रेगुलेशन से है. अब आपका जो प्रश्न है कि उसका ऑडिट ट्रेल हम में तो वो दिखेगा, वो बंदेगा. हाँ, तो उसको एनोमाइजेशन या सुडोमाइजेशन के तहत उसको आपको डेटा को डिलीट करना पड़ेगा. और उसका जो फॉर एग्जांपल अब मेरा डेटा डिलीट हो रहा है तो कुछ तो आपके डेटा में दिखेगा कि संयोगिता का डेटा डिलीट हुआ, संयोगिता दिखेगा, पर मेरा जो रिलेटेड डेटा था, फॉर एग्जांपल मैंने कितना लोन लिया था या मेरा क्या आपके साथ मैंने क्या क्या ट्रांजैक्शन किए, वो आप डिलीट करा सकते हो. बट मेरा नाम जो एक सिंगल वो है वो तो रहेगा आपके इसमें. जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर केस में कभी कभी ऐसा होता है बिकॉज वी आर वर्किंग विद एनालिटिक्स, राइट. सो कई बार स्टैटिस्टिक्स, तो उस पर्टिकुलर केस में स्टैटिस्टिक्स तो हम हटा नहीं सकते. नहीं, बिल्कुल नहीं रह सकते. और स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए वो क्या बोल रहे हैं, the law is saying it very clearly, for statistical purposes you can use the data but the data should be anonymized, completely anonymized. कि आपको स्टैटिस्टिक्स के लिए ये नहीं पता चलना चाहिए कि संयोगिता, इसकी एज क्या है, इसका ये क्या, फिर इसने ये किया. आपको ये पता चलना चाहिए अच्छा इस एक्स इंडिविजुअल डिड सो एंड सो.
आपको उसके लिए नाम या उसके आइडेंटिफायर्स की जरूरत नहीं होगी। अब जैसे एक पर्टिकुलर केस और आता है, हाँ। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एप्लीकेशन हम लोग ले रहे हैं किसी सर्विस के अंडर और हमें ये चीज़ इंश्योर करनी है कि वो पर्सन दोबारा वो चीज़ रजिस्टर नहीं कर रहा है। हाँ। तो इवन इफ दे आर आस्किंग फॉर इरेजर, वील हैव टू इंश्योर कि हमारे पास किसी तरीके से उनका डेटा इस फॉर्म में हो कि हम कंफर्म कर सकें कि वो दोबारा से नहीं दे रहा है। हाँ, तो वो आपके जो भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस है या सेक्टोरियल रेगुलेशंस को बोलते हैं उसके तहत आप वो रिटेन कर सकते हैं डेटा, बट आपको वो सिर्फ मेंशन करना पड़ेगा कि आप There should क्यों। be, I think there should be a framework to how to exactly do this. Yeah. हमें जैसे DPDP रूल्स की जो बात हो रही है, I don't think वो इतनी डेप्थ में जाएंगे इस चीज़ नहीं, के तो लिए। ये फ्रेमवर्क्स ना आपको खुद को क्रिएट करने पड़ते हैं आपके सेक्टोरियल बॉडीज के साथ मिलके। Now I tell you, we recently did a workshop in Mumbai, which was for the BFSI sector. Now, what was this workshop? It was all the BFSI organizations, like your banking and financial services. They all came together in a room, right? And they decided, okay, कोई अपना केस स्टडी बता रहा है, okay, PhonePe did this, NPCI did this, Aditya Birla Capital did this. अब हमको इसके से ऐसे एक्सिस बैंक HDFC और प्रेसिडेंट सेट करने पड़ेंगे। लॉ नया है, प्रेसिडेंट सेट करने तो पड़ेंगे। इस पर्टिकुलर में पुश होना चाहिए ना, मतलब जो रूल्स हैं वो इस चीज़ को पुश नहीं, रूल्स आपको बताएंगे, आपको ये करना है, आपके ऑर्गेनाइजेशंस को या आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको खुद को एक प्रेसिडेंट सेट करने पड़ेंगे या कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। अब मैं एक बहुत क्लासिक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम इस बात पे आई गए कि प्रेसिडेंट सेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसे एग्जांपल लखनऊ एज अ लखनऊ गवर्नमेंट, राइट, और प्रोबब्ली योर सेक्टर शुड सेट प्रेसिडेंट। नाउ आपने एयर इंडिया और एयर विस्तारा का मर्जर के बारे में सुना है कि उन दोनों का मर्जर हो गया। अब तब DPDP एक्ट 2023 ऑलरेडी था, उसके बाद इनका मर्जर हुआ। तब इनकी DPO ने सोचा कि अच्छा मैं कैसे सबको बता पाऊँ कि हमारा डेटा एयर विस्तारा से अब एयर इंडिया में पुश हो रहा है। उनके पास सबकी करेक्ट ईमेल आईडीज नहीं थी, मोबाइल नंबर्स नहीं थे, और इतने लोगों को कैसे रीच करे। तो व्हाट दे डिड इज, उन्होंने एक पेपर नोटिस निकाली, जिस पेपर नोटिस में उन्होंने डाला ये हमारी सूचना पत्र है, प्रिवेसी नोटिस, कि हम आपका डेटा एयर विस्तारा से एयर इंडिया में मर्ज कर रहे हैं। ये तो कहीं लॉ में प्रिस्क्राइब किया हुआ नहीं ना कि आप ऐसे नोटिस भी दे सकते हो, बट ये इनोवेटिव अप्रोच या ये थिंक थॉट प्रोसेस उन्होंने खुद ने डिजाइन की और उन्होंने किया ये चीज। तो ये प्रेसिडेंट आपको ऐसे सेट करने पड़ेंगे आपके गवर्नमेंट अथॉरिटीज में भी कि हम कैसे इस चीज को बेस्ट वे में इम्प्लीमेंट कर पाए। ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि आपने ये 4 चीजें कर दी तो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया DPDP, नहीं, प्रेसिडेंट्स आएंगे और प्रेसिडेंट सेट करने पड़ेंगे, है ना। सो दैट इज समथिंग।
notice कि there should be a mechanism for raising grievance for your personal data. May it be editing that data or probably some grievance that data is not correctly mentioned and all. The data principal should have right to raise their grievances. Now, suppose नहीं आपका sectorial regulation नहीं बोलता कि आप नहीं share कर सकते या आपको जरूरत नहीं है share करने की, that is there is no requirement. Then you can definitely say around DPDP it's mentioned that without any purpose you cannot share that data. या consent लिए बिना जो end user है उसका consent लिए बिना हम आपको data नहीं दे सकते. The law says, probably Bharat sir will cover in his consent piece, कि how important is consent when you're sharing data with third parties या other departments. तो आपके पास consent होना बहुत जरूरी है उस व्यक्ति का. ओके लेकिन मान लीजिए हम इंस्टॉल कर दिए तो एग्रीमेंट भी तो खत्म हो गया ना मेरा. हाँ नहीं तो जो आप जो बोल रहे हैं ना डैशबोर्ड जैसे दिखना चाहिए तो वो शायद आपको कंसेंट मैनेजर जो एक स्टेक होल्डर क्रिएट किया गया है. Take it up. Yeah? Can I just take it up? या प्लीज अच्छा. No, that's okay. Consent.